તો શરૂઆત કરીએ બુલેટિનની બજેટના સમાચારોની સાથે બજેટને હવે એક સપ્તાહનો સમય બાકી છે અને આવામાં બજેટમાં શું હોઈ શકે છે તે અંગે એક્સિસ સિક્યોરિટીઝે એક રિપોર્ટ કાઢ્યો છે અને આ રિપોર્ટની વિગતો લઈએ સહયોગી યતીન મોતા પાસેથી। યતીન, એક્સિસ સિક્યોરિટીઝની બજેટથી શું આશા છે? તો એક્સિસ સિક્યોરિટીઝની વાત કરીએ તો બજેટમાં બીજા બ્રોકરેજની જેમ આ વર્ષનું જે ફિસ્કલ ડેફિસિટ છે એનો આંકડો લગભગ 5% આસપાસ તેઓએ મૂક્યો છે। 5.1% ટુ બી પ્રિસાઇઝ, કારણ કે તેમને લાગે છે કે થોડી ઘણી વેલફેર સ્કીમ્સ જે છે ગવર્મેન્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જે આરબીઆઈનો સ્પેશિયલ ડિવિડન્ડ છે એના કારણે ઘણું કુશન સરકારને મળેલું છે। FY26ની વાત કરીએ તો લગભગ 4.5%ની આસપાસ ફિસ્કલ ડેફિસિટનું ટાર્ગેટ સરકાર રાખી શકે અને ઘણા બધા બ્રોકરેજનું અનુમાન છે કે આ વર્ષ માટે 5.1%ની આસપાસ અને નેક્સ્ટ યર માટે લગભગ 4.5%નું ફિસ્કલ ડેફિસિટ ટાર્ગેટ રાખશે સરકાર। નોકરી ઊભીઓ કરવા માટે અને રૂરલ સેક્ટર માટે ખાસ સરકાર પ્રયાસ કરશે, તેની માટે તેઓ કેપેક્સ ઉપર કન્ટિન્યુઅસ ફોકસ રાખશે। રોડ રેલવે સેક્ટર તો સરકારના ફેવરેટ સેક્ટર્સ છે જ્યાં આવંટન તો વધી જ શકે, તેની સિવાય અફોર્ડેબલ હાઉસિંગને સ્પેશિયલ ઇમ્પેટસ આપવામાં આવે। તેની સિવાય વાત કરીએ જોબ ક્રિએશન ઉપર તો સરકારની જવાબદારી રહેશે, કારણ કે હજી બી પ્રાઇવેટ સેક્ટર નું જે કેપેક્સ છે લેગિંગ છે, એટલે એક્સિસ સિક્યોરિટીઝને લાગે છે કે જોબ ક્રિએશન ઉપર સરકાર ખાસ ફોકસ આ બજેટ માટે રાખી શકે। સ્ટોક આઈડિયાની વાત કરીએ તો જે એક્સિસ સિક્યોરિટીઝને પર્ટિક્યુલરલી ગમે છે બજેટની આગળ સ્ટોક્સમાં હીરો મોટોકોર્પ, અલ્ટ્રાટેક, નેસ્લે, એનટીપીસી જેવા લાર્જ કેપ્સ અને મિડ કેપ્સની વાત કરીએ તો પ્રાજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, આઇનોક્સ, વિન્ડ, જે કુમાર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, અલુવાલિયા કોન્ટ્રાક્ટ્સ અને વી માર્ટ જેવા કાઉન્ટર્સ સામેલ છે જે તેમના કવરેજમાં બી છે। પણ સ્પેસિફિકલી વાત કરીએ નોન કવરેજ સેક્ટર્સમાં તો તેમાં એમએનએમ, પાવરગ્રીડ, વાટેક વાબાગ અને ડિફેન્સની થીમમાં BEL આ કાઉન્ટર્સ તેઓને પસંદ આવી રહ્યા છે। તો ઘણા બધા સ્ટોક્સ જે ખાસ છે એક્સિસ સિક્યોરિટીઝને લાગે છે સારું પ્રદર્શન કરી શકે અગર બજેટ સેટિસ્ફેક્ટરી રીતે કન્ઝમ્પશનને પ્લે અપ કરી શકે તો। જી યતીન, આભાર આપનો જોડાવા માટે અને સમગ્ર માહિતી આપવા માટે। તો હવે વાત કરીએ આવતા સપ્તાહે રજૂ થનારા આ બજેટમાં રોકાણકારોને નિરાશા નહીં મળે। CNBC બજારને મળેલી એક્સક્લુઝિવ માહિતી મુજબ સોશિયલ વેલફેર પર ખર્ચ કરવા છતાં પણ નાણાકીય ખાદ્યના મોરચે સરકાર કોઈ બાંધછોડ नहीं करे। आखिर विगतों जानिए सहयोगी लक्ष्मण रॉय पासेથી। लक्ष्मण जी, निवेशकों को निराशा नहीं मिलेगी, इसका मतलब क्या हुआ? दरअसल बजट को लेकर सबसे ज़्यादा निगाहें जिस बात पर टिकी रहती हैं, आज उस पर से मैं पर्दा हटाने वाला हूं। दरअसल जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बजट से निवेशकों को किसी भी तरह की कोई निराशा नहीं मिलेगी, क्योंकि निवेशकों की सबसे ज़्यादा नज़र होती है कि सरकार वित्तीय अनुशासन, जिसको फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं, फिस्कल प्रूडेंस कहते हैं, उस पर सरकार कितनी कायम है। तो जो अलग अलग सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार इस पर बिल्कुल कायम रहेगी, वित्तीय अनुशासन से कोई समझौता नहीं करेगी। यहाँ तक कि फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा केंद्र में रहता है, वो अंतरिम बजट में सरकार ने जो 5.1% का रखा था वो 5.1% तो बरकरार ही रहेगा। और कुछ हद तक ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद ये 5.1 से घट भी जाए। घट करे कितना हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन अटकल है कि शायद ये घट करके 5.1 से कम 5% तक लाया जा सकता है फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा। ये अपने आप में बड़ी बात होगी, इस मायने में कि सरकार वित्तीय अनुशासन पर बनी हुई है और अनाप शनाप खर्चा नहीं करेगी, सरकार का खजाना भरा पूरा रहेगा। और इस फिस्कल डेफिसिट को घटाने के पीछे दरअसल 2-3 खास वजह है। पहली बात तो यह है कि रिजर्व बैंक से आपने देखा ही 2.1 लाख करोड़ रुपए का बम्पर डिविडेंड मिला, जो कि उम्मीद से दोगुने से ज़्यादा था। डायरेक्ट टैक्स की वसूली में अब तक 23% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। अप्रैल मई में जीएसटी की वसूली 11% से ज़्यादा बढ़ चुकी है, पिछले साल की इसी अवधि से तुलना कर रहा हूँ। और इन सब के बीच सब्सिडी में बहुत ज़्यादा खर्च होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, चाहे फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, ऑयल सब्सिडी हो। तो दूसरे मुद्दों पर जैसे होम लोन सब्सिडी हो, वहाँ पे थोड़ी बहुत बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार फिस्कल डेफिसिट के आंकड़ों को मेंटेन करके रखेगी। हो सकता है इसमें कटौती भी कर दे और कोई ऐसे भी बदलाव नहीं करेगी जिससे निवेशकों को कोई मायूसी हाथ लगे। तो ये बजट मुझे लगता है कि इस मायने में बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। जी लक्ष्मण जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो હવે વાત કરીએ ઈ કોમર્સ અને કન્સ્ટ્રક્શન સેક્ટરમાં કામ કરનારા અસ્થાયી કર્મચારી એટલે કે ગિગ વર્કર્સ માટે બજેટમાં મોટી જાહેરાત થઈ શકે છે। સૂત્રો પ્રમાણે ગિગ અને પ્લેટફોર્મ વર્કર્સની એક્સિડેન્ટલ અને મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સને ભેટ મળી શકે છે અને આના ઉપર વધુ વિગતો લઈએ સંવાદદાતા આલોક પ્રિયદર્શી આપણી સાથે। આલોક जी, गिग वर्कर्स को बजट में क्या तोहफा मिल सकता है?
बिल्कुल देखिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस बार बजट में सरकार जो गिग वर्कर, जिनके अस्थायी कर्मचारी कहते हैं, जो बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनियां या छोटे छोटे जगहों पर काम करते हैं और रेगुलर काम नहीं कर पाते, उन्हें कई मायनों में दिहाड़ी मजदूर भी कहा जा सकता है, उनके लिए सरकार सेफ्टी नेट का इंतजाम इस बार बजट में कर सकती है। सेफ्टी नेट से मतलब उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस जैसी जो सुविधाएं हैं उनको मिलेगी, ताकि आपातकाल स्थिति में उनके साथ कोई ऐसी दिक्कत ना हो, कोई आर्थिक परेशानी ना हो। इसमें जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड का गठन का ऐलान किया जा सकता है, जिसमें ये पूरी तरह से कंट्रीब्यूटरी फंड होगा। इसमें जो एम्प्लॉयर होगा, जैसे कि जो कोई एग्रीगेटर है, वो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय से इसमें कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा और साथ ही साथ इसमें सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी। इस तरह से जो फंड बनेगा उसके जरिए उनको एक्सीडेंटल जो डेथ या डिसेबिलिटी कवर होता है वो मिल सकेगा। इसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटी होती है, जैसे ईएसआई जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है, उसके तहत जो तमाम जगहों पर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, उसमें इनको शामिल करने पर बातचीत चल रही है। अगर उनमें शामिल कर दिया जाए तो उनके लिए जो मेडिकल फैसिलिटी होगी वो काफी आसान हो जाएगी। और अभी तक जो ईएसआई होती है, वो जो अलग अलग जो फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं या फिर जो रेगुलर कर्मचारी खासतौर से होते हैं, उनके लिए सुविधा होती है, लेकिन जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी जैसी सुविधा नहीं होती है। लिहाजा इन तमाम मुद्दों पर जो गिग वर्कर्स या गिग इकोनॉमी कहते हैं, जो बड़े पैमाने पर देश में अभी रोजगार दे रहा है ई कॉमर्स सेक्टर में और तमाम सेक्टर्स में, वहां पर जो एम्प्लॉय काम करने वाले हैं उनके लिए बड़ी राहत का ऐलान इस बार बजट में हो सकता है। जी आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए।